السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ منگنی کی رسم ہو گئی تھی، اب سب ہوٹنگ میں لگے تھے اور شہیر اور ساحر کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ بڑے سب الگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران ارحا حمزہ کے ساتھ اپنے والدین کے پاس آئی اور حمزہ کا تعارف کروایا، اور حمزہ نے بھی اپنے والدین سے ارحا کو ملوایا۔ ارحا کے والد حمزہ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کی ٹینشن بھی دور ہو گئی کہ ارحا نے کسی غلط انسان کو پسند نہیں کیا۔ حمزہ کی مزید معلومات عنایا کے والدین نے دی تو انہوں نے سکون کی سانس لی۔ حمزہ کے والدین نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارحا کا ہاتھ مانگ لیا، جسے کچھ سوچنے کے بعد ساحر اور اس کے ڈیڈ نے جواب ہاں میں دے دیا۔ ایسے ایک اور رشتہ بن گیا اور طے پایا کہ ساحر اور شہیر کے ساتھ حمزہ کا نکاح ہوگا۔ حمزہ اور ارحا کی خوشی دیدنی تھی۔ حمزہ یہ سوچ کر پرسکون تھا کہ جس کو چاہا اس کو اللہ نے قسمت میں بھی لکھ دیا، اور اب سب حمزہ اور ارحا کو ہوٹنگ کرنے لگے، جس میں عنایا پیش تھی، کیونکہ حمزہ نے عنایا کی کافی ٹانگ کھینچی تھی۔ سب نے پلان کیا کہ آج کی شام کو مزید انجوائے کیا جائے، اس لیے سب نے کسی ریسٹورنٹ پہ جانے کا پروگرام بنایا۔ یہ ریسٹورنٹ سے بہتر ہے کہ ہم ساحل سمندر پر جاتے ہیں، ساحر نے کہا۔ سب نے ساحر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ سمندر پر پہنچ کر سب کو بہت سکون ملا اور سب اپنے اپنے پارٹنر کو لے کر الگ الگ گوشے چلے گئے، جبکہ ارسلان پیچھے دہائیاں دیتا رہا کہ ہم اکیلے کیا کریں گے، پر کسی نے لفٹ نہ کروائی۔ خدا کرے تم لوگوں کو راستہ بھول جائے، اللہ کرے تم لوگوں کے پاؤں میں موچ آ جائے۔ پیچھے سے ارسلان کی بد دعائیں جاری تھی، جبکہ سب نے اس پہ 2 حرف بھیجے، چل عمر یار، ہم بھی کسی کونے میں بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں، ہمیں بھی ہماری والی ملے گی، پھر ہم بھی ان کو منہ نہیں لگائیں گے جیسے یہ ہمیں نہیں لگا رہے۔ ارسلان نے اپنے نظر آنے والے آنسو صاف کیے، جبکہ عمر نے اس کی نوٹنکی دیکھتے ہوئے ارسلان کے پیٹ میں کوہنی ماری اور ارسلان کی چیخ نکلی، بس کر نوٹنکی کمینے، باز آ، ابے تجھے کیا موت پڑی ہے، تو آج بہت کھویا کھویا لگ رہا ہے، خیر تو ہے؟ ارسلان نے عمر سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں یار، ابے بتا یار، میں سوچ رہا تھا کہ شہیر کی قسمت تو بہت تیز نکلی، اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، ثانیہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن عنایا کے گندمی رنگ میں جو کشش ہے، ایسی کشش کبھی نہیں دیکھی کہیں، کاش ہم نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو آج ہمارا مقدر بھی چمک جاتا۔ کمینے بکواس نہ کر، اپنا ٹھڑک سنبھال کر رکھ، بھابھی ہے وہ ہماری، اور خبردار جو تم نے کوئی چول ماری۔ شہیر کو دیکھ رہے ہو، آج سے پہلے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ آج ہے۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، تو سیریس ہو گیا، عمر نے کہا تو ارسلان نے سکون کی سانس لی۔ ساحر نے ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ثانی، ساحر نے گمبھیر لہجے میں ثانیہ کو بلایا۔ جی، ثانیہ نے جواب دیا، کیونکہ وہ ساحر کے ساتھ ایسے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ ثانی، سچ بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہیں مستقبل میں میرا ساتھ قبول ہے؟ کیا اس رشتے میں تمہاری دلی رضامندی شامل ہے؟ جی میں مطمئن ہوں ساحر، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے ایک الگ مقام محسوس کرتی ہوں۔ میں ایک الگ کشش ہے جو آپ کی طرف کھینچتی ہے مجھے، اس لیے میں آپ سے رشتہ جڑنے پہ مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک چاہنے والا ہم سفر دیا ہے۔ ثانیہ کے جواب پر ساحر نے دلی طمانینت محسوس کی اور اپنی آنکھیں بند کر کے ثانیہ کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اس دل کی دھڑکن سنو ثانی، کہ جب آج تم میرے پاس ہو، یہ میرے بس میں نہیں، یہ دل اسی دن تمہارے لیے دھڑکنے لگ گیا تھا جس دن تمہیں دیکھا تھا، اور مرتے دم تک یہ تمہارے لیے ہی دھڑکے گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک پیاسا اور تڑپتا انسان پانی کو دیکھ کر جی اٹھتا ہے، بالکل یہی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے مجھے زندگی مل گئی ہو۔ جبکہ ثانیہ اتنی چاہت پر حیران ہو گئی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئی۔ حمزہ اور ارحا تھوڑے فاصلے پر چل رہے تھے، ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں کو محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بے معنی سی خاموشی تھی، جسے آخرکار ارحا نے توڑا۔
मिस्टर थर्की, आप कुछ कुछ शरीफ नहीं हो गए? इरहा की बात पर हमजा बेख्तियार हंस दिया। नहीं मैडम, ये आपकी गलतफहमी है। शरीफी वाला सिस्टम हमें मौजूद नहीं। हाँ हाँ, इरहा का मदम कहका गूंजा। आप शरीफ होना भी मत, ऐसे ही अच्छे लगते हैं मिस्टर टर्की। जो हुक्म सरकार। हमजा ने सीने पर हाथ रखकर थोड़ा झुक कर कहा, जिस पे इरहा बेख्तियार हंस दी। इरहा थोड़ा आगे बढ़ी कि हमजा ने इरहा का हाथ पकड़ लिया। इरहा, क्या तुम खुश हो? तुम्हें क्या लगता है हमजा? मुझे तो लगता है आप माँ बदौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं। लोग कुछ ज़्यादा ही खुश फहम नहीं हो रहे? हाँ जनाब, ये तो अच्छा है कि हमें खुश फहमी है, गलत फहमी नहीं। हमजा, इरहा ने संजीदगी से हमजा को देखा। क्या हुआ? हमजा ने पूछा। हमजा, कभी भी मुझे धोखा मत देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम नहीं जानते मैं अपनी चीज़ों और रिश्तों को लेकर कितनी पोजेसिव हूँ। इरहा ने आंखों में नमी लेकर कहा, अरे पागल हो गई हो? मैं कभी तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। ऐसे वहम जहन से निकाल दो। मुझ पे भरोसा रखो इरहा। हमजा को एक जगह सीप के खोल नजर आए। हमजा ने वो पकड़े और इरहा की हथेली पर रख दिए। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरी तरफ से तोहफा। इरहा ने मुस्कुराकर सीप को देखा और मजबूती से अपनी हथेली बंद कर दी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। शहीर और अनाया सबसे कुछ फासले पर एक बेंच पे बैठे थे। अनाया, तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। जिसे मैंने हमेशा पाने की दुआ मांगी थी, आज इसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो अनाया? शहीर ने अनाया के हाथ अपने पुरहित हाथ में लेकर नज़रों में आज समोए अनाया से पूछा। शहीर, मैं नहीं जानती मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ कि नहीं, लेकिन बचपन से अपने नाम के साथ आपका नाम सुना। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपने साथ तस्वर भी नहीं कर सकती। बस सारी ज़िंदगी आपका साथ चाहती हूँ, लेकिन आजकल मुझे अजीब अजीब से वसवसे आते हैं, अजीब से खदशे दिल में पैदा हो रहे हैं। ख्वाब में तुमसे खुद को बिछड़ते हुए देखती हूँ और ये खदशात और वहम मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहे। कुछ भी मत सोचो अनाया, ये सब वहम होते हैं। जितना खुद पे सवार करोगी इतने बढ़ेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। बस 1 महीने की बात है, फिर तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाओगी। अगर मुझे इमरजेंसी यूएस ना जाना पड़ता बिजनेस के सिलसिले में, तो मैं आज ही निकाह करके तुम्हें अपने नाम कर लेता। लेकिन मेरी माँ की भी कुछ ख्वाहिशात हैं मेरी शादी को लेकर, जिसकी वजह से 1 महीने का वक्त लिया है मैंने। तुम बस कुछ फजूल ना सोचो। चलो अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। सब साथ साथ चलने लगे। ऐसे एक खूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ। मंगनी के हंगामे थमे तो सब अपनी रूटीन पर वापस आ गए और सब अपनी अपनी जगह खुश और मुतमईन थे। आज शहीद की यूएस की फ़्लाइट थी। वो अपने बिजनेस को पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और वो बहुत मसरूफ़ था। वो 1 महीने से पहले पहले अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहता था, जिसके लिए आज वो यूएस जा रहा था। अरसलान और शहीर दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे, इसलिए वो दोनों यूएस जा रहे थे। जबकि उमर का कहना था कि वो अब दुबई जाएगा, इसे किसी से वहाँ मिलना है, जिसके बाद वो यूएस वापस जाएगा। तो आज शहीर अनाया से मिलने के लिए आया था। अनाया उदास थी शहीर के जाने से। अरे यार, उदास क्यों हो रही हो? बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगा, इसलिए फ़िक्र मत करो। शहीर, आप जा रहे हैं तो मुझे अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है जो मुझे और आपको जुदा कर देगा। अनाया ने वही कहा जो वो महसूस कर रही थी और कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। महमद, मेरी जान, यार पागल हो गई हो क्या? कैसी अजीब अजीब बातें सोच रही हो? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें
धोखा दूंगा या किसी को अपने दरमियान आने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे आप पर यकीन है, पर मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत हसास हूँ, और हसास लोग शायद हर चीज़ ज़्यादा महसूस करते हैं, इसलिए शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ। बस ये याद रखना शहीर, मैंने बचपन से बस आपको सोचा है, अब कुछ गलत हुआ तो बर्दाश्त न कर सकूंगी। अनाया ये ना कह सकी कि जब भी एतबार की डोर वो शहीर की तरफ से थामती थी तो इसे वो डोर टूटती नजर आती थी। जब भी वो शहीर के साथ जिंदगी गुजारने का सोचती थी तो इसे बस अंधेर, नगरी और खला ही नजर आता था। और ऐसा क्यों था वो ये समझ नहीं पा रही थी, और इसे ये वक्त बहुत जल्द समझाने वाला था। चलो अब मुझे खुशी खुशी रुखसत करो ताकि मैं जा सकूं, और रोज़ वीडियो कॉल पे बात ज़रूर करोगी। और अब कुछ लड़कियों वाले कपड़े पहना करो ताकि मुझे मुट्ठी में कर सको। शहीर ने बात को मजाक का रंग दिया कि महमल का मूड चेंज हो। जनाब, पहले ही मेरी मुट्ठी में है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मेकअप की दुकान बन के आगे पीछे फिरने की। जिस पर शहीर हंस दिया। शहीर और अरसलान एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे, और इनको सी ऑफ करने के बाद अनाया कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद इसे हमजा का फ़ोन आ गया। क्या हाल है बिलबतौरी, आज यूनी क्यों नहीं आई? कुछ नहीं, बस आज शहीर यूएस के लिए जा रहा था तो बस इसलिए। तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस इरहा का वेट कर रहा था। वो आज मेरे साथ शॉपिंग पे जाएगी क्योंकि इसे लगता है तैयारियों के लिए एक महीना बहुत कम है, तो आज से ही शॉपिंग स्टार्ट की जाए। अच्छा चलो, ये भी अच्छा है। तुम्हें तो पता है कि वो कितनी कॉन्शियस अपने स्टाइल को लेकर, इसे बस हर जगह परफेक्ट नज़र आना होता है, अनाया ने कहा। जबकि हमसा को अनाया कुछ उदास लगी। क्या बात है अनाया, मुझे तुम उदास लग रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही शहीर किया है ना, तो वक्ती रिएक्शन है। अनाया ने टाल मटोल से काम लिया। वो हमजा को अपनी फीलिंग्स बताकर उदास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह महसूस कर रही थी हमजा बहुत खुश है। वाह जी वाह मैडम, मुझे जन्मरीति के ताने देने वाली और मोहब्बत को फजूल कहने वाली की अब ये हालत है। बेटा, देख लिया मोहब्बत का कमाल, तेरी हालत पतली हुई पड़ी है। बकवास न करो हमजा, अभी तुम्हारे जितने रिकॉर्ड नहीं तोड़े मैंने, इसलिए तो अभी से शॉपिंग पे लेकर खुद जा रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ आगे क्या होगा। अनाया बात करते करते कमरे से निकलकर लॉन में आ गई थी, जबकि उमर भी दुबई के लिए तैयार होकर अनाया के माँ बाप से मिलने आ रहा था। और अनाया को देखकर वहीं रुक गया और गौर से अनाया को देखने लगा। इसकी फीलिंग्स अजीब होने लगी। अनाया को हासिल करने का जुनून इसे खुद में महसूस हुआ। जबकि अनाया का ध्यान उमर की तरफ गया तो इसने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला। अरे उमर भाई, आप कब आए? मैं बस अभी आया था, दुबई के लिए निकलने वाला था, सोचा तुम लोगों से मिलता जाऊं। बहुत अच्छा किया, अंदर आए, अनाया ने उमर को कहा। अच्छा हमजा, उमर भाई आए हैं, हम बाद में बात करते हैं। अनाया ने यह कहकर कॉल ड्रॉप की और अपने ही ध्यान में आगे चलने लगी और एक पत्थर से टकरा कर गिरने लगी। अल्लाह, अनाया के मुंह से चीख निकली। उमर ने जल्दी से अनाया का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अनाया गिरने से बच गई। जबकि अनाया का लम्स महसूस करके उमर को अपने बदन में चिंगारियां जलती महसूस हुई, और बेखुदी में इसने अनाया के बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर दी। जबकि अनाया इस चीज़ को महसूस न किया और अपना बाजू छुड़वाया। उफ, बहुत शुक्रिया मुझे बचाने का, वरना अभी गिर के मैंने कोई ना कोई हड्डी तोड़वा लेनी थी। ये कहकर अनाया अंदर की तरफ चल दी, जबकि उमर इसी लम्हे के असर में वही खड़ा रहा और अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ चल दिया। इसका दिमाग तेजी से अगला लाया अमल तैयार करने लगा। मंगनी के फौरन बाद ही सानिया के एग्ज़ाम्स आ गए, जिसकी वजह से वह बहुत मसरूफ़ हो गई। साहिर भी अपने ऑफिस वर्क में बुरी तरह मसरूफ़ था। इसे एक प्रोजेक्ट मिला था जो इनके लिए बेहद ज़रूरी था, और इसके दिन रात इसी पर मेहनत करने पर गुजर रहे थे। सानिया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, वो कुछ रिलैक्स हुई तो साहिर के बारे में सोचने लगी कि मंगनी के बाद से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ था। पहले तो बहुत पीछे पड़ा हुआ था, अब फ़ोन पे हाल पूछने से भी गया। ऐसे ही होते हैं लड़के, जब तक लड़की लिफ्ट नहीं करवाती आगे पीछे रहते हैं, और जैसे ही लड़की हाँ बोल दे तो इनकी नज़र में वो अहमियत नहीं रहती। वो बदगुमान होने लगी।
कॉल करूं या ना करूं, रहने देती हूँ। सानिया ने सोचा, चलो कॉल नहीं करती, एक मैसेज ही कर लेती हूँ। लेकिन मैसेज किया तो वो ज़्यादा ही शोखा हो जाएगा। क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। उफ, क्या करूँ। इसने झुंझला कर कहा, चलो एक मैसेज कर देती हूँ। सानिया ने सलाम का मैसेज साहिर को भेजा, जो कि 2 मिनट बाद सीन हो गया और इसका दिल धक धक करने लगा। ज़हे नसीब आपका मैसेज, वो भी हमें, वाह। साहिर ने सानिया को रिप्लाई किया। सानिया ने मैसेज पढ़ा तो अपनी मुस्कुराहट दबाई। बस ड्रामे करवा लो जितने भी आपसे और बातें बनवा लो। सानिया ने रिप्लाई किया और 2 मिनट बाद साहिर का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सानी? मेरी याद कैसे आ गई, वरना तो मैं समझा था जनाब को याद ही नहीं कि अब वो मंगनी शुदा है और इनका एक अदद मंगेतर भी है जिस पर भी कभी नज़र करम कर लें। अच्छा जी, अगर यही शिकवा मैं करूं तो मंगनी के बाद से आपने एक फ़ोन भी किया मुझे? बस मंगनी करवाने की जल्दी थी, सानिया ने मुंह बसोर कर कहा, जबकि वो शिकवा करती साहिल को बहुत अपनी अपनी लगी और वह सरशारी से मुस्कुरा दिया। मतलब तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, साहिल ने शरारत से कहा। कैसी तब्दीली? सानिया ने पूछा। मतलब मेरी मोहब्बत अपना आप मनवा रही है और आपके दिल पर भी असर अंदाज हो रही है। जनाब, आपकी खुशफहमी अरूज पर है, थोड़ा सब्र रखें। सब्र ही तो रखा है, और कितना सब्र करें जनाब, आप ही बताएं। और ये सब्र बस कुछ दिनों तक का है, फिर बस आप मेरी होंगी और मैं अपनी मोहब्बत खुद ही मनवा लूँगा, कुछ लफ्ज़ों से और कुछ अमल से, साहिर ने ज़ुबानी अंदाज में कहा। जबकि इतनी दूर बैठे भी सानिया का शर्म से चेहरा सुर्ख पड़ गया और इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जबकि सानिया के यूं फ़ोन बंद करने पे साहिर ने होंकों की तरह फ़ोन को देखा और अपनी बात याद आने में ज़ोर से कहका लगाया, वाह मैडम, एक बात से ही डर गई। अभी तो आपको अपनी बेकरारियां बतानी है सानिया जी। हमज़ा और इरहा शॉपिंग कर रहे थे और हमज़ा को आज ही पता लग गया था कि शॉपिंग के मामले में इरहा मुस्तकबिल में कितना टफ टाइम देने वाली थी, क्योंकि इसे कुछ पसंद ही नहीं आता था जल्दी। अब सुबह से शाम हो गई थी और अब जाके इरहा को निकाह का जोड़ा पसंद आया था। अब वो चेंजिंग रूम में थी और जब वो जोड़ा पहन कर निकली तो हमज़ा को पलक झपकना मुश्किल लगा। डार्क मैरून कलर का लहंगा चोली जिस पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी, इरहा की सफ़ेद रंगत पर इतना जच रहा था कि जैसे ये बना ही इसके लिए हो। हमज़ा के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। कैसी लग रही हूँ मैं मिस्टर ठर्की? बहुत खूबसूरत लग रही हो इरहा। इतनी कि शायद मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा पहले कहीं नहीं देखा, और अगर मैं तुम्हारी तारीफ़ करने लग गया तो हमें सुबह भी यही पर हो जाएगी। इसलिए अब घर चलते हैं और ये तारीफ़ मैं हक से फुर्सत में करूँगा जब तुम स्पेशल मेरे लिए ये पहनोगी और मेरे लिए सजो सवरेगी। अफ़ज़ा ने इरहा का हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो या मुझे लगती हो? मुझे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ लगता ही नहीं। किसी ने सच कहा है, महबूब आंखों में बस जाए तो दुनिया का और कोई नज़ारा दिल को नहीं भाता। बस महबूब सामने हो तो आंखों को सुकून मिलता है। जबकि हमज़ा के ऐसे कहने पर इतनी बोल्ड होने के बावजूद भी इरहा को अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई और खामख्वाही बालों को कानों के पीछे अड़सने लगी और दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। इसको लग रहा था कि जैसे इसके दिल की धड़कन सबको सुनाई दे रही है। इरहा ने घबराकर हमज़ा से हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन इसने हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर दी। ये हाथ छुड़वाना आसान नहीं इरहा, इसको उम्र भर के लिए थामना है मैंने। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है तो मैं दुनिया में खुद को कितना खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा हूँ। जिसे मेरे दिल ने चाहा, इसे मेरा रब मुझे देने जा रहा है। मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकती तुम। प्लीज़ छोड़ो, हमज़ा सब देख रहे हैं और घर भी जाना है, बहुत टाइम हो गया है। हमज़ा ने इधर उधर देखकर हाथ छोड़ दिया, जबकि इरहा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ टेक लगा ली और अपने दिल पर हाथ रखा। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? हमज़ा बहुत असर अंदाज हो रहे हैं तुम मुझ पर।
इरहा बाहर आई तो जोड़ा पैक करवा कर पेमेंट की और दोनों चल दिए। आइसक्रीम खाओगी? हमजा ने गाड़ी में बैठकर इरहा से पूछा। नहीं प्लीज़, अब घर जाना है। मॉम की कॉल आ गई थी। साहिर भाई भी आ गए हैं और वो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते। हमजा ने महसूस किया साहिर और इरहा में बहुत मोहब्बत थी। साहिर का जिक्र करते इरहा के लहजे में बेपनाह मोहब्बत और अकीदत थी। एक मान और भरोसा था इसे अपने भाई पर। लेकिन कभी कुछ मोहब्बतें भी आजमाइश बन जाती हैं। उमर दुबई नहीं गया था, बल्कि इसने पाकिस्तान में एक होटल में बुकिंग करवाई थी। इसका दिलो दिमाग क्या चाहता था ये अभी इसे खुद भी समझ नहीं थी। अनाया शहीर की मंगेतर थी, इसके बचपन की मोहब्बत थी। उमर ने तब से शहीर के लहजे में बेपनाह मोहब्बत महसूस की थी अनाया के लिए, जब शायद अनाया और शहीर को भी इस बात का इल्म नहीं था। और वो शहीद के लिए बहुत खुश भी था। तीनों दोस्तों में मिसाली मोहब्बत थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि पाकिस्तान आकर इसकी फीलिंग्स ही बदल जाएंगी। और कुछ उमर की फितरत थी कि हर बेहतर चीज़ को वो अपनी दस्तरस में चाहता था। और कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी उमर की जिनसे शहीर वाकिफ नहीं था, लेकिन कुछ हद तक अरसलान वाकिफ था। इसने बहुत दफ़ा उमर को समझाया भी, लेकिन जब वो नहीं माना तो इसके हाल पे छोड़ दिया इसने। और अनाया को देखकर इसे शहीद से हसद महसूस होने लगा। इसे लगा कि नहीं, इसे मेरी दस्तरस में होना चाहिए, ना कि शहीद की। शैतान दोस्ती पर हावी हो रहा था और अब अपनी इसी शैतानी सोच को वो अमली जामा पहनाने के लिए अगला लम्हा अमल तैयार करने लगा। बेशक हसद और नजर बद इंसान की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ देता है, और शहीद और अनाया के मुकद्दर में क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। और उमर पर शैतान कब तक हावी रहेगा इसका फैसला भी वक्त नहीं करना था। और अगर इंसान का नफ्स और इरादा मजबूत हो तो कभी भी शैतान हावी नहीं हो सकता। लेकिन हम इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपना ईमान कमज़ोर करके शैतान को खुद मौका देते हैं कि वह हमें फरगलाए, हम पर हावी हो जाए। और शैतान तब तक हावी रहता है जब तक हम कोई बुरा काम न कर लें। जैसे ही हम वो काम कर लें, शैतान भी दूर चला जाता है और हमारा ज़मीर जाग जाता है। उमर की अनाया और शहीर की हर सरगर्मी पर नज़र थी। वो वक्तन फ़वक्तन शहीर से बात करके सब इन्फॉर्मेशन लेता रहता था बहाने से। और इसने खुद को यही जाहिर करवाया था कि वह पाकिस्तान में नहीं, दुबई में है और जल्द ही यूएस जा रहा है। शहीर का काम भी तकरीबन ख़त्म था, बस कुछ दिनों में ही इसकी फ़्लाइट थी पाकिस्तान जाने के लिए। शहीर और अरसलान ने अपना बिजनेस कामयाबी से पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया था। और अरसलान की फैमिली तो पाकिस्तान बहुत टाइम पहले से आ गई थी, लेकिन वो बिजनेस की वजह से नहीं आ सका था। पर अब इसने भी यूएस को अलविदा कहने का सोच लिया था। कुछ ही दिनों में अनाया का बर्थडे था और शहीर इसे सरप्राइज़ देना चाहता था, जिसकी वजह से इसने अपने आने का अनाया को नहीं बताया था। लेकिन शहीर की ये कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी इसे अभी अंदाज़ा नहीं था। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।